سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، کراچی کے پوش علاقوں کلفٹن اور ڈیفنس میں ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ۔ پولیس کا کہنا ہے وارداتوں میں 2 گینگ اگست سے سرگرم ہے۔ پوش علاقوں میں ڈکیتی کی وارداتوں میں افغان گینگ ملوث ہے، جس کے 100 سے زائد کارندے سرگرم ہیں۔ رواں سال کراچی کے ضلع جنوبی میں لوٹ مار کی 29 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ پولیس اب تک ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ ہمیں رپورٹ کریں گے قمر علی۔ کلفٹن اور ڈیفنس میں گھروں میں لوٹ مار کی وارداتیں پے در پہ جاری ہیں۔ شہری بھاری مالیت کے طلائی زیورات اور نقد رقم سے محروم ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ پولیس واقعے میں ملوث ڈاکوؤں کے گروہ کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق کلفٹن اور ڈیفنس میں ڈکیتیوں کی وارداتوں میں سب سے زیادہ افغان گینگ ملوث ہے۔ افغان گینگ کرکرے میں 100 ملزمان ہیں۔ کرکرے گینگ واردات میں سفید اور سلور کرولا گاڑی استعمال کر رہا ہے۔ گینگ ہر واردات کے لیے مختلف جعلی نمبر پلیٹ استعمال کرتا ہے۔ ڈیفنس اور کلفٹن میں 60% سے زائد وارداتوں میں افغان گینگ ملوث ہے۔ دوسری جانب ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق ڈیفنس کلفٹن میں ڈاکوؤں کے گروہ اگست سے سرگرم ہیں۔ افغانی کرکرے سمیت ڈاکوؤں کے 2 گینگ سرگرم ہیں۔ رواں سال ضلع جنوبی میں لوٹ مار کی 29 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ افغان گینگ کرکرے اور دوسرے ڈکیت گینگ کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ کلفٹن اور ڈیفنس میں لوٹ مار کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے میں پولیس کی ناکامی پر شہریوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ پوش علاقے کو پرامن بنانے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین سید ناصر علی کے ساتھ قمر علی مستوئی، جیو نیوز، کراچی۔ میں گیس بحران سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ سوئی سیدن کو گیس پریشر میں شدید دشواری۔ سوئی سیدن کو RLNG سپلائی میں بھی کمی کا سامنا ہے۔ نان ایکسپورٹ صنعتوں سمیت نجی بجلی گھروں کو بھی گیس کی سپلائی پیر تک بند ہے۔ نان ایکسپورٹ صنعتوں بجلی گھروں کو گیس کی سپلائی پیر کی صبح 8 بجے بحال ہوگی۔ ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے سمندر میں تیز لہروں کے باعث LNG کے جہاز کی آمد میں تاخیر ہے۔ گیس کی کمی پر لوڈ مینجمنٹ پلان کے تحت تقسیم کی جا رہی ہے۔ گھریلو صارفین کو بلا تعطل گیس فراہم کی جائے گی۔ سوئی صدرن کی جانب سے 3 دن کے لیے صنعتوں کو غیر اعلانی گیس بند کی گئی ہے۔ FPCCI نے سندھ میں صنعتوں کو 3 دن گیس بندش مسترد کر دی۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ معاشی ترقی کے بارے میں عالمی بینک کا تخمینہ غیر حقیقی ہے۔ عالمی بینک کا موجودہ مالی سال معاشی شرح نمو 3.4% رہنے کا تخمینہ غلط ہے۔ ایک اعلامیہ میں وزارت خزانہ کا کہنا تھا موجودہ مالی سال پاکستان کی معیشت 5% شرح سے ترقی کرے گی۔ جولائی میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 2.3% بہتری آئے گی۔ گنے، چاول، مکئی اور کپاس کی فصل میں بہتری کا تخمینہ ہے۔ زراعت، صنعت، تجارت اور دیگر شعبوں میں مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ تعمیراتی شعبے کے لیے مراد صنعتی ترقی کا باعث بنے گی۔ سی پیک کے تحت اقدامات اور مراعاتی پیکج سے صنعتی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں۔ کورونا ویکسینیشن کے کامیاب پروگرام سے نجی شعبہ قدرے بحال ہو چکا ہے۔ معیشت کی بحالی کا عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ فیصل آباد میں مہنگی بجلی اور دھاگے کی انتہائی قیمتوں نے پاور لوم سیکٹر کو بحران میں دھکیلنا شروع کر دیا ہے، جس سے پاور لومز مالکان اور مزدور دونوں متاثر ہیں۔ مزید بتائیں گے عرفان اللہ اپنی رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں بجلی اور دھاگے کی انتہائی قیمتوں سے پیداواری لاگت بڑھنے کے نتیجے میں پاور لوم فیکٹریوں کو خسارے کا سامنا ہے۔ اسی لیے مالکان نے فیکٹریاں ہفتے میں 2 روز کے لیے بند کرنا شروع کر دی ہیں۔ بجلی کی قیمت 24.5 سے 25 روپے یونٹ ہو چکی ہے، جو کہ بہت زیادہ اور انڈسٹری اس کی متحمل ہی نہیں ہے۔ دوسرا ڈالر کی قیمت جو روز بروز بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے یان کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور ہماری کاسٹ آف پروڈکشن میں بے انتہا اضافہ ہے۔ ان سب عوامل کی وجہ سے ہم ہفتے میں 2 دن اب ہماری انڈسٹری جو ہے کہ وہ فیکٹریز کو بند رکھ رہی ہے۔ فیکٹریوں کی 2 روزہ بندش سے روزانہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کے متاثر ہونے پر مزدور تنظیمیں انڈسٹری بچاؤ تحریک چلانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ تنگ آمد بجنگ آمد فیصلہ کیا گیا ہے کہ 27 اکتوبر سے ایک بڑی تحریک کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں انڈسٹری بچاؤ اور مزدور بچاؤ تحریک کے پلیٹ فارم سے جدوجہد کی جائے گی۔ پاور لومز مالکان اور مزدوروں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ موجودہ بحران کے مزید سنگین ہونے سے قبل انڈسٹری کو بچانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔ کیمرہ مین علی ارسلان اور احمد علی کے ساتھ عرفان اللہ، جیو نیوز، فیصل آباد۔
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इक़दामात में इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सबकी शमूलियत के साथ अफगान हुकूमत की हिमायत करता है। अमरीकी नायब वजीर खारजा से गुफ्तगू में आर्मी चीफ का कहना था, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों का अज़्म किए हुए है। आर्मी चीफ ने पाक अमरीका पायदार कसीरुल जहती ताल्लुकात के बामकसद दो तरफा राब्ता बरकरार रखने पर जोर दिया। अमरीकी नायब वजीर खारजा ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार और अफगानिस्तान से कामयाब इनकलाब में ताउन पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीकी नायब वजीर खारजा ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। अमरीकी वफ़द दोहा में तालिबान के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। अफगानिस्तान से इंखला के बाद तालिबान से पहली बातचीत हफ्ते से हो रही है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की मीडिया से ब्रीफिंग। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका और तालिबान के दरमियान सीनियर सतह की बातचीत आज और कल इतवार को होगी। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीका और तालिबान की ये पहली आला सतही बातचीत होगी। अमरीकी वफ्द में महकमा खारजा, यूएसएड और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अहदेदार शामिल होंगे। मुलाकात में अमरीकी और दीगर अफराद का बहिफाजत इनखला, अफगानिस्तान को दोबारा अलकायदा या दीगर शिद्दत पसंदों का गढ़ बनने से रोकने और इंसानी इमदाद तक रसाई को बेहतर बनाने के उमूर पर गुफ्तगू होगी। मुलाकात में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद शामिल नहीं होंगे। अमरीकी एहलकारों का कहना है कि आला सतह की मीटिंग में महकमा खारजा के नायब नुमाइंदा खुसूसी टॉम वेस्ट, यूएसएड की अहदेदार सारा चार्ल्स भी शामिल होंगी। तालिबान की जानिब से उनकी काबीना अरकान शामिल होंगे। मुलाकात का मकसद तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना या कानूनी समझना नहीं, तालिबान को अपनी कानूनी हैसियत मनवाने के लिए इक़दाम करना होंगे। अफगान शहर कुंदूज की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 55 नमाजी शहीद, 143 जख्मी हो गए। दाइश ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पाकिस्तान ने कुंदूज में मस्जिद पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मस्जिद पर दहशतगर्द हमले में कीमती जानों के ज़िया पर शदीद दुख है। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम अफगान भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की पुरजोर अंदाज में मजम्मत करता है। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 29 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मजीद 955 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता रोज 44,557 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 2,644 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 29 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मजीद 955 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ 44,557 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। लाहौर पुलिस ने शहीद कांस्टेबल की बेटी को उसके पहले दिन सरकारी प्रोटोकॉल के साथ स्कूल छोड़ा। SP कैंट एहलकारों के हमरा बच्ची के साथ गए और उसे स्कूल बैग समेत दीगर तोहफे भी पेश किए। SP कैंट ईसा सुखैरा के मुताबिक कांस्टेबल इमरान एहतजाजी मुजाहिरों में शहीद हो गए थे। शहीद की 4 साल बच्ची उर्वा नूर ने अपने शहीद वालिद के साथ पहले दिन स्कूल जाने की जिद की तो उन्होंने बच्ची के सर पर दस्ते शफकत रखा और पूरे प्रोटोकॉल के साथ उससे स्कूल छोड़कर आए, जहां दीगर बच्चों को भी तहाइफ पेश किए। ईसा सुखैरा का कहना था कि तमाम शोधा के बच्चे हमारे अपने बच्चों की तरह हैं, शहीदों के ख़ानदानों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-12 चढ़ोई कोटली में ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान इतवार को सज रहा है। पहाड़ी इलाकों और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल इस हल्के के मकीन तबाहाल सड़कों की बेहतरी, सेहत और तालीमी मसाइल का हल चाहते हैं। तफसील बताएंगे शहबाज बुखारी। 25 जुलाई 2021 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन 2 हलकों LA-10 और LA-12 से कामयाब हुए थे, जिसके बाद एक नशिस्त LA-12 छोड़ने का ऐलान किया था। इस नशिस्त पर इतवार को इंतखाबी दंगल होने जा रहा है। हल्का में कुल वोटर्स की तादाद 1,06,428 है। ये हल्का दोलिया जट्टा, काला डब,
चड़ोई शहर, दमाल और लाइन ऑफ कंट्रोल तक फैला हुआ है। हल्के में जितनी ज़्यादा सियासी गहमा गहमी नज़र आ रही है, इतने ही ज़्यादा यहाँ के मसाइल भी हैं। तबाहाल लिंक रोड्स, सेहत के मसाइल, बेरोज़गारी और बुनियादी सहूलियात का फुकदान यहाँ के शहरियों के बड़े मसाइल हैं। यहाँ सड़कें नहीं बनी हैं, 10 साल तक स्कूलों की हालत गैर है। हाँ, तो यहाँ पे कोई कॉलेज अच्छा है ना यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो रोडें इतनी टूटी फूटी हैं कि 1 घंटे का सफ़र है जो 3 घंटों में तय होता है। सफाई नहीं है, किसी किस्म की हमें सहूलत नहीं है, मुख्तसर यही है। पीपल्स पार्टी के आमिर यासीन, पीटीआई के शौकत फरीद और मुस्लिम लीग नून के राजा रियासत खान के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। हालिया इंतखाबात में यहाँ 2 अफराद के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या भी हो चुका है, जिसके इल्ज़ाम में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जेल से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के बड़े रहनुमाओं की आमद, सियासी जलसे जुलूसों के बाद यहाँ वोटर्स में खासा जोशो खरोश है। देखते हैं कि 10 अक्टूबर फैसले के दिन यहाँ के अवाम किसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हाकान के साथ शहबाज बुखारी, जियो न्यूज़, चढ़ोई, कोटली, आज़ाद कश्मीर। एक तरफ माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान को दुनिया भर में सराहा जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में प्रीमेच्योर जंगलात की कटाई माहौल के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। मुजफ्फराबाद से मैं रिपोर्ट करेंगे आरिफ उर्फी। दरख्तों को जमीन के फेफड़े कहा जाता है, लेकिन सांस इन फेफड़ों से जमीन पर बसने वाले जानवर लेते हैं। एक दरख्त अपनी जिंदगी में 2.5 टन के लगभग कार्बन डाइऑक्साइड पीकर 6 से 7 हजार किलो ऑक्सीजन फिजा में छोड़ता है, जबकि एक इंसानी जिस्म 1 साल में 750 किलोग्राम ऑक्सीजन पीकर दरख्तों के लिए 2 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। सांसों की अदल बदल का ये सिलसिला जमीन पर जिंदगी को रवान दवा रखे हुए है। पहले जंगल बहुत ज़्यादा थे, जंगलात ख़त्म हो रहे हैं और इससे लैंडस्लाइडिंग का बड़ा खतरा है। सरबुरीदा दरख्तों को देखकर इंसान को खुद अपनी सांसें डूबती महसूस होती हैं। दरख्त काटने के बाद अपने करतूतों को छिपाने के लिए उनको आग लगाते हैं। ये आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर खानपुर से पीर हसीमार तक फैले जंगलात हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर कटे हुए ये दरख्त हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने से पहले ही कत्ल कर दिए गए हैं। इस तरह अगर दरख्त जो है वो कटाव का शिकार होते रहे तो एक क्लाउड बर्स्ट की वजह से तमाम जो मैदानी इलाके हैं वहाँ तक ये नुकसानात जो है वो पहुँच सकते हैं। अगर इस कटाव को रोकेंगे तो तब जाकर हम इस जंगलात को, अपनी सरजमीन को बचा सकते हैं। महकमा जंगलात ने इस मामले की बाबत अपना मौक़िफ़ देते हुए बताया कि उस इलाके में महकमा जंगलात के अमले को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान सुनामी बिलियन ट्री प्रोजेक्ट को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, तो दूसरी जानिब जंगलात की बेमहाबा कटाई सुनामी बिलियन ट्री प्रोजेक्ट का मुंह चढ़ा रही है। कैमरामैन हसन शाह के साथ मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, वादी जहलम, आज़ाद कश्मीर। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में गर्म रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला में शाम और रात के दौरान बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सखर नवाबशाह 41, सिब्बी 40, मुल्तान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद 37, कराची 36, लाहौर पेशावर 35, मुजफ्फराबाद 34, इस्लामाबाद 33, कोयटा 31 और गिलगित में 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।